All right, now we can see some important points or important discussions. Then we will go for proofs. So first one is that is the coupling of engines. Okay, or people also name it as combinations of heat engines. Okay, so what does it mean? We can, like we have in physics, uh, we only work for the series and parallel combination. Okay, so we usually have two type of combination. Case one is the series combination. Okay, of course there can be multiple. In this case, what will happen that we will have multiple engines and you can connect them in series. But what do you mean by series? Okay, so when the heat rejected by one engine, okay, when the heat rejected by one engine uh, is the input for the second engine, right, and so on. what what does it mean? Suppose this was the first engine, it absorbed some heat and it rejected some heat. Okay, now this rejected heat is acting as the absorption of heat for the second engine, right, like this and so on. It can go for n numbers of engines, but we will do for only two because the concept is same. You can use the same concept for the higher numbers of uh, engines. Okay, so here sink of, okay, let there are two engines E1 and E2 such that sink of or the cold reservoir of E1 serve as source or the hot reservoir of E2. Okay, you know that every engine has a hot reservoir and a cold reservoir, right? But now what we are saying, the cold reservoir of first engine is serving as the hot reservoir of the second engine. Okay, and so on for the lower if you have multiple number of engines. So इसका मतलब ये भी है कि heat rejected by E1 goes as input of E2. ओके, ये एक स्पेशल केस है. ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी हीट जो E1 इजेक्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा वो E2 ले ले, बट ये मैक्सिमम केस में ऐसा लिया जाता है. बट वी विल टेक द सेम थिंग. ओके, वी विल टेक द सेम थिंग कि जितनी भी हीट पहले इंजन ने फेंकी है वो हीट दूसरा इंजन ले रहा है, राइट, बिकॉज एवरी इंजन एब्जॉर्ब सम हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर. सो सेकेंड वाले रिजर्वायर का मतलब जहाँ पे इसको ऐसे समझ, ये पंच लाइन है. पंच लाइन ये है कि जहाँ पर पहला इंजन ख़त्म करता है वहाँ पे सेकेंड इंजन स्टार्ट करता है. थिंक सो सिंपल. सो लेट्स, दिस इज द hot reservoir
for the first engine, let's call it E1, and this is the cold reservoir of first engine. This cold reservoir of first engine will work as the hot reservoir of the second engine, sorry, and finally there is a coldest you can say, let's call it TC prime, और इसको TC बोलते हैं. TC is the coldest reservoir, and the पहले इंजन ने W1 काम किया सपोज, दूसरे इंजन ने W2 काम किया सपोज. ओके, नाउ वी वांट टू सी कि फाइनल नेट एफिशिएंसी में क्या फ़र्क आया. ओके, कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं भी हुआ, दैट इज़ वी वांट टू सी. एंड रिमेंबर, इसने QH अमाउंट ऑफ हीट लिया था, इसने QL अमाउंट ऑफ हीट फेंका था, और हमने अजम्पशन ये लिया है कि पहले वाले ने जितना हीट फेंका था वो दूसरे वाले ने उतना ही हीट एब्जॉर्ब किया. रिमेंबर, ये अजम्पशन है. ओके, मैंने पहले एक गलती कर दी थी कि मैंने बोला कि सीरीज़ का मतलब ये होता है कि पहला जितना फेंके उतना दूसरा ले. दैट इज़ नॉट अ सीरीज़. सीरीज़ का मतलब ये होता है कि जब पहले का सिंक दूसरे के सोर्स की तरह काम करे. ओके, सो इफ़ यू सी, अगर इसने QL फेंका है तो ये QL ही लेगा. ये अजम्पशन हमने ले रहे हैं. बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जितना पहला फेंकता है उसका 50% जो बचेगा वो सेकंड इंजन लेगा, तो इसको QL/2 कर सकते हैं, बट ऐसा मैक्सिमम केस में नहीं होता है. न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं होगा. ओके, और सपोज इसने फिर लास्टली QL फेंका, और सपोज इसको हम QL प्राइम बोलते हैं बीच वालों को, और लास्ट वाले को QL बोलते हैं. ओके, दिस इज़ द होल स्टोरी. सो यू कैन सी, इफ़ यू जस्ट सी दिस फर्स्ट इंजन, व्हाट इज़ दिस W1? W1 इज़ नथिंग बट QH minus QL प्राइम, राइट? इट शुड नॉट बी हार्ड टू थिंक अबाउट इट. पहले वाले इंजन को देखोगे तो ये आएगा, सॉरी. नाउ इफ यू थिंक अबाउट ओनली दिस सेकेंड इंजन, what is the work done now? QL prime is heat taken and QL is heat ejected, so this will be simply QL prime minus QL. Fine. Okay, now if you see efficiency of coupled इंजन, एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? नेट वर्क डन बाय टोटल हीट एब्जॉर्ब. थिंक अबाउट इट, कितना नेट वर्क डन किया इस पूरे के पूरे इंजन ने? W1 प्लस W2, नो डाउट, राइट? ओके, नेट वर्क डन इज सिंपली W1 प्लस W2 बाय कितना हीट एब्जॉर्ब किया है इस नेट, इस फुल इंजन ने, इस कॉम्बाइंड इंजन ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया है. डो नॉट से Q1 एंड QL प्राइम, दिस इज द मिस्टेक. द हीट एब्जॉर्ब वॉज QH ओनली, राइट? और जो हीट फेंकी थी वो दोबारा यूज हुई है, वो नया से हमने लिया नहीं है, बस हमने एक ही बार हीट ली थी, QH ली थी. सो देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब्ड इज QH. नाउ राइट द वैल्यू ऑफ W1 and W2. So it will be QH minus QL prime plus QL prime minus QL, है ना, upon QH. So you can cancel these two terms. Then we will get QH minus QL by QH. Therefore 1 minus QL by QH. So this is the net efficiency of the combined engine. So let's call it eta combined. Okay, eta combined, and it is valid in general. Okay, we have not considered कि ये हमारा कार्नोट इंजन है, यानी कि रिवर्सिबल इंजन है, हमने ये
अज्यूम नहीं किया है, ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है। दिस इज द केस। नाउ इफ़ यू सी, अगर ये हमारा कार्नोट इंजन होता, ठीक है, तो कार्नोट इंजन होता तो वी, अगर हम कार्नोट इंजन की बात करें तो पहले इंजन कार्नोट है, दूसरा इंजन भी कार्नोट है, तो वी कैन राइट फ्रॉम हियर इफ दिस if both the engines were Carnot engine, Carnot engines, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से क्यू एच बाई क्यू एल प्राइम, क्यू एच बाई क्यू एल प्राइम, क्यू एच के साथ का टेम्परेचर टी एच है और क्यू एल प्राइम के साथ का टेम्परेचर टी सी प्राइम है, तो यू कैन इक्वेट दम, हमने पहले भी देखा है ये, ओके, टी सी प्राइम, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड वाला इंजन भी हमारा कार्नोट इंजन है, लुक एट दिस वन, सो यू कैन राइट क्यू एल प्राइम, this heat and this temperature and this heat and this temperature, so you simply QL prime by QL equal to TC prime by TL, okay, so bring these two equations down, so ये दो इंजन हमारे कार्नो इंजन थे, तो इसलिए ये दो फॉर्मूले वैलिड हो गए हमारे पास। डिवाइड 1 and 2, what do you get, क्यू एच अपॉन क्यू एल प्राइम, डिवाइड करेगा तो क्यू एल ऊपर जाएगा, सॉरी क्यू एच बाई क्यू एल प्राइम, नॉट डिवाइड, मल्टीप्लाई दम, सॉरी मल्टीप्लाई दम, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, क्यू एच अपॉन क्यू एल, ओके, इट विल बी टी एच बाई टी एल, राइट। नाउ सपोज लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर स्टार, पुट 3 in star, what do you get, eta combined is for Carnot engine 1 minus T H by T L, okay, this was the combined Carnot engine efficiency. And look, what is the oh, wait, TH, no TL, sorry, it will become TL na, because equation number star is QL by QH, so QL by QH is reverse of this, so it will become TL by TH, okay. So there were three temperatures, right, three temperatures, so the सबसे coldest वाले का सबसे हॉटेस्ट वाले पर रेशियो है, राइट, 20 वाले का कोई रेशियो नहीं लिया गया फाइनल एफिशिएंसी में, हॉट कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट। एंड अगर तू देखेगा पहले वाला इंजन, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 4, अब ना वी वांट टू सी कि कोई फ़ायदा हुआ कंबाइन करने के बाद, मतलब आई हैड इंजन 1 इन माई हैंड एंड आई हैड इंजन 2 इन माई हैंड, दोनों की कुछ एफिशिएंसी थी, बट मान ले पहले की एफिशिएंसी थी 50, दूसरे की एफिशिएंसी थी 60%, ओके, बट इफ़ आई कंबाइन देम, कि कंबाइन करने के बाद सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, स्पेशली सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या एफिशिएंसी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, लेट्स सी। अगर मैं पहले वाले इंजन को देखूँ, सिंपली हियर look only this one, so what is the eta 1, eta 1 is nothing but TC, okay, let me write it only, eta 1 is T1 minus TC prime by TH, okay. Similarly second engine का क्या होगा बता, pause the video and tell me the answer, 1 minus TC by TH, okay. So let me again copy it and paste it down. So if you see, eta 1 is this one and eta 2 is this one, okay. No, this is not TC by TH, sorry, my mistake, this will be TC by T prime, TC prime
ईटा 2 इज 1 माइनस टी सी बाई टी सी प्राइम, टी सी बाई टी सी प्राइम. ओके, fine. Now if you want to compare this efficiency, these three efficiency, okay, these three efficiency if you compare, then अगर ये क्वांटिटी, क्योंकि वन तो सब में कॉमन है राइट, वन तो सब में कॉमन है, अगर ये क्वांटिटी जिसकी सबसे कम होगी, दिस रेशियो जिसका कम होगा उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी. तो इफ़ यू सी जिसका अगर ओके लेट मी राइट, अगर अदरवाइज तो कंफ्यूज होगा. इसको 5 बोल देते हैं, इसको 6 बोल देते हैं. द लोवेस्ट रेशियो और द स्मॉलेस्ट रेशियो स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ टेम्परेचर, हाँ, इम्प्लाइज हाईएस्ट एफिशिएंसी. समझ रहे हैं ना क्यों? क्योंकि अगर रेशियो हाई होगा ना, सॉरी स्मॉल होगा, तो छोटी क्वांटिटी घटेगी एक में से, और एक में से जब कुछ कम घटेगा तो आंसर बड़ा होगा राइट. अगर तू कंपेयर करेगा, अगर तू 2 या 3 क्वांटिटी घटाने जा रहा है, जितना कम घटाएगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, उतना ज़्यादा वो बड़ा नंबर होगा, हाईएस्ट एफिशिएंसी. ओके, देन अगर ये क्वांटिटी मुझे सबसे बड़ी चाहिए, सॉरी सबसे छोटी चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए, तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा चाहिए. अगर डिनोमिनेटर सबसे बड़ा चाहिए तो हु हैज़ द हाईएस्ट डिनोमिनेटर, यानी कि सबसे बड़ा टेम्परेचर हॉटेस्ट वाला कौन सा वाला है, टी एच है. तो ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो ये दोनों तो ये तो पार हो गया पहले ही, तो इससे तो बड़ी होगी, इससे तो बड़ी होने वाली है एफिशिएंसी. तो अब इन दोनों का कंपैरिजन है. अब अगर ये दोनों का बेस सेम है तो डिपेंड करता है कि दोनों का ये न्यूमरेटर, किसका न्यूमरेटर छोटा है, टी एल और ओके ये टी सी था ना, हाँ टी सी था ये एल और सी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट वो एक लो टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर में. सो टी सी और टी सी प्राइम में बड़ा छोटा कौन है, टी सी, क्योंकि कोल्डेस्ट वाला है ना नीचे, सो टी सी छोटा है. ओके, सो इसीलिए ये रेशियो सबसे छोटा है. हेंस इन तीनों में अगर तू कंपेयर करे तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी इसकी है, क्योंकि ये सबसे छोटे रेशियो में आ रहा है राइट. जितना टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा होगा हाइयर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर में, देखिए सबसे, ऐसे डायग्राम की बात करें तो ये सबसे दूर बैठे हुए हैं ये टी सी और टी एच, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी. है, समझ में आ गया होगा आई थिंक. सिंपल मैथ्स है, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट, नथिंग मोर कॉन्सेप्चुअल हियर. तो कंक्लूजन ये निकला, इन सीरीज कॉम्बिनेशन efficiency of combined engine increases, okay, efficiency increase होती है फ्रॉम द इंडिविजुअल वन. माने इंडिविजुअल की 50 थी पहले, एक की 50 थी, एक की 60 थी, तो ऑफकोर्स दोनों को मिलाएंगे तो 50 और 60 से तो ज़्यादा आएगा ही. चलो लेट्स डू एन एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल अच्छा खासा एग्जाम्पल करेंगे, ऐसे छोटा मोटा एग्जाम्पल नहीं करेंगे. ओके, एग्जाम्पल, सो सपोज पहले वाले, लेट मी कॉपी ऊपर वाले को, इट विल सेव टाइम.
अब मैं नंबर्स में खेल रहा हूँ. नाउ आई एम प्लेइंग इन द नंबर्स. तो ये मैं किसी बुक से ले रहा हूँ एग्जाम्पल, तो इसलिए नंबर्स बहुत प्रिसाइज हैं. रिमेंबर टेम्परेचर इज ऑलवेज इन केल्विन, पहले भी बात की थी, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग. ये बीच वाला सिंक हमारा 1800 केल्विन में है और नीचे वाला 800 केल्विन में है. अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, यू मस्ट कन्वर्ट इनटू द केल्विन स्केल. ठीक है. और यू आर गिवन की ओके आप तो देखेगा अगर सिंपली इस वाले इंजन की एफिशिएंसी क्या है, ईटा 1 माइनस 18. कार्नोट इंजन है, सॉरी. सो कार्नोट इंजन है तो वी डोंट वरी अबाउट, बोथ द इंजन्स आर कार्नोट. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द हीट ट्रांसफ़र, टेम्परेचर से काम बन जाएगा. सीरीज कॉम्बिनेशन इज गिवन. ओके, तो देख पहले की एफिशिएंसी क्या बन जाएगी, ईटा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हाइयर. लेट्स फाइंड द प्रिसाइज नंबर. प्रिसाइज नंबर पता करते हैं कितना आता है. लेट मी यूज़ द कैलकुलेटर. सो इट विल 1800 बाई 4050 माइनस 1, so it is 0.55. okay, what about eta 2? Eta 2 for this engine, what is the efficiency? 1 minus 800 बट्टे 1800, so 800 upon 1800 minus 1, it is again 0.55. that is okay, इसमें कोई दिक्कत नहीं. ये तो बस नंबर्स ऐसे हैं कि बराबर आ गए. बट ईटा कंबाइंड 1 माइनस सबसे कोल्डेस्ट और सबसे हॉटेस्ट 800 अपॉन 4050. लेट्स सी व्हाट इज दिस नंबर. दिस नंबर इज 80% और 0.8. लुक हाउ एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड. इसीलिए हमने बोला था कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो एफिशिएंसी विल इंक्रीज्ड. ओके, एंड रिमेंबर अगर इसको तुम 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसको 55% बोल सकते हो, इसको 55% बोल सकते हो, इसको 80% बोल सकते हो. सो दिस इज हाउ वी हैव सीन कि अगर हम कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एफिशिएंसी विल इंक्रीज का मतलब क्या है, जो इंडिविजुअल से जो थी उससे तो बड़ी हो जाएगी. ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल की सम की बराबर हो जाएगी. जैसे ये मत सोचना कि हम लाइक यू हैव सीन इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट अगर हम दो सीरीज़ में कॉम्बिनेशन में अगर रजिस्टर को लगाते हैं तो दोनों का रिजल्टेंट सम हो जाता है. नो, दैट इज़ नॉट द केस. द ओनली कंक्लूजन इज़ दैट जो रिजल्टेंट या जो कॉम्बिनेशन के बाद जो इंजन बनेगा, कपलिंग के बाद जो इंजन बनेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी इंडिविजुअल के कंपैरिजन में. जो इंडिविजुअल एफिशिएंसी थी दोनों की, उससे तो आंसर ज़्यादा आएगा, उससे तो ज़्यादा एफिशिएंट वो इंजन होगा, combined engine, coupled engine. Okay, fine. The next one is of course you must have guessed parallel combination. Okay, parallel combinations. And of course we have done for 2. You can do it for multiple number of engines. And again I am repeating कि हमने ये assumption लिया है कि full heat rejected goes to the this one सेकेंड इंजन. पहले इंजन का जो इजेक्शन है वो दूसरे इंजन का
एडेप्टेशन है। सो पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल का मतलब ये है कि when all the engine are working between, all the मतलब when we have multiple engines are working between same cold and hot reservoirs. Okay, सपोज हमारे पास एक रिजर्वायर था ऐसे, T high and we had T cold reservoir, and there are, suppose let's take two only for now. Suppose this is E1 and similarly we have E2. Okay, E2. So suppose it takes Q1 amount of heat. Let's not, okay, अभी मैं Q1 बोल रहा हूँ तो मैं वैसे अवॉइड करता हूँ नंबरिंग करना, बट लेट्स डू इट फॉर नाउ. और ये Q2 लेता है और ये सपोज Q3 लेता है और Q4 फेंकता है. ओके, तो मान ले इसका, मान ले नहीं, अब तो इसका तो वर्क डन निकाल सकता है. वर्क डन बाई E1 इज़ नथिंग बट W1 इज़ नथिंग बट Q1 minus Q2, and work done by second one is nothing but Q3 minus Q4. ओके, एफिशिएंसी क्या होगी कंबाइंड इंजन की? कंबाइंड इंजन की एफिशिएंसी, कंबाइंड टोटल वर्क डन बाय टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड. टेल मी, पॉज द वीडियो एंड टेल मी व्हाट इज द टोटल वर्क डन. क्लियरली W1 plus W2, what is the total heat absorbed? Q1, नो, Q1 plus Q3. अभी दो इंजन अलग अलग तरीके से हीट ले रहे हैं, एक ही सिंक से हीट ले रहे हैं, है ना, यहाँ से. तो W1 plus W2 क्या हो जाएगा? Q1 minus Q2 plus Q3 minus Q4 upon Q1 plus Q3. तो इफ़ यू कम, पहले ऊपर वाले न्यूमरेटर को थोड़ा कंबाइन करें तो ऐसे Q1 plus Q3 लिख सकता है, माइनस Q2 plus Q4 लिख सकता है, अपॉन Q1 plus Q3 लिख सकता है. सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस. है ना, और ये कंबाइंड होगा इन जनरल. हाँ, वी हैवन टेक द कार्नोट साइकिल राइट नाउ. ये इन जनरल ट्रू. इन जनरल साइकिल. बट अगर ये फॉर कार्नोट साइकिल, for Carnot cycle you can clearly write Q1 upon TH equal to, I mean Q1 upon Q2 equal to TH upon TC, और similarly Q3 और temperature TH and Q4 and temperature TC. So ये हम पहले वैसे बार बार करते हुए आ रहे हैं, तो you should not have now confusion. अगर confusion हो रहा है तो इसका मतलब पिछले वाली वीडियोज़ क्लियर नहीं है. Q2 upon Q1, what is Q2 upon Q1? बताओ. Q2 upon Q1 क्या होगा? TC upon TH, TC upon TH, और ये यही इक्वल होगा किसके बराबर? Q4 upon Q3. And now from here I think maybe yeah you can prove कि ये जो Q2 plus Q4 है अपॉन Q1 plus Q3 है ना ऊपर वाले फॉर्मूले में, ये भी TC by TH आएगा. यू कैन प्रूव इट. मतलब मैं कर सकता हूँ इसको, बट यू कैन डायरेक्टली राइट दिस इन एन एग्जाम, बट लेट मी प्रूव इट फर्स्ट. ओके, तो Q2 by Q1
इक्वल टू है Q4/Q3 इक्वल टू है TC/TH। ओके, क्योंकि ये सब रेशियोज हैं, सो लेट मान लेते हैं कि TC/TH मेरा कोई रेशियो है अल्फ़ा। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ Q2/Q1 इक्वल टू अल्फ़ा, मतलब मैं लिख सकता हूँ Q2 इक्वल टू अल्फ़ा Q1 एंड सिमिलरली Q4 इक्वल टू अल्फ़ा Q3, है ना। क्योंकि मुझे ये निकालना है तो मैं न्यूमरेटर को लिख रहा हूँ ऐसे। न्यूमरेटर में पहले क्या है Q2, मैं Q2 लिख दिया, Q4 का एक्सप्रेशन लिख दिया, तो क्या आएगा न्यूमरेटर। सो हमें ये निकालना है ना Q2 + Q4 अपॉन Q1 + Q3। सो Q2 की वैल्यू मैं लिख दूंगा अल्फ़ा Q1 और Q3 की वैल्यू मैं लिख दूंगा अल्फ़ा Q3 अपॉन Q1 + Q3। सिंपल। इफ़ यू टेक अल्फ़ा कॉमन तो Q1 + Q3 और Q1 + Q3 विल कैंसिल आउट, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी TC/TH। तो ये जो रेशियो आया, इस रेशियो की भी वैल्यू क्या आ जाएगी TC/TH। तो इफ़ यू सी दिस फॉर कार्नो इंजन, this eta combined becomes 1 minus TC/TH, right? And if you see, it's interesting, अगर तू देखेगा इंडिविजुअल इंजन की बात करेगा, इसकी बात करेगा, इसका रेशियो क्या होगा, इसका एफिशिएंसी क्या होगा। कार्नोट अगर है, अगर ये कार्नोट है, नॉट कार्नोट, अगर ये कार्नो इंजन है, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। सिंपल, सेम 1 minus TC/TH, बिकॉज हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर। सिमिलरली फॉर द सेकेंड इंजन, सेम एफिशिएंसी। द मीनिंग ऑफ दिस थिंग इज दैट in okay, I can write eta1 is also 1 minus this thing TC/TH. Eta2 is same as 1 minus TC/TH. Hence eta1 equals eta2 equals eta combined। अगर ये कार्नोट है तो वैसे, और कार्नोट नहीं भी है तो वहाँ पे भी ऐसे ही आएगा इन दैट केस। ओके, ठीक है। तो ये इसको मैं यहाँ पर कार्नोट लिखता हूँ, कार्नोट सॉरी, आई एम नॉट श्योर कि अगर कार्नोट होगा नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, उसको हम बाद में देख सकते हैं। बट अभी हम कार्नोट की बात करते हैं। मैं अभी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट क्लेमिंग कि अगर ये इरिवर्सिबल इंजन होगा तो क्या होगा, बट फॉर कंक्लूजन ये निकला, इफ देयर आर coupled engines, ओके, इफ और फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने इंजन तू सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा, नॉट सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा, डजेंट मैटर। तू एक तो मतलब क्या बनता है, 2 लगा, 200 लगा, 2000 लगा, डजेंट मैटर। एनी नंबर ऑफ कार्नो इंजन coupled in parallel combination will not increase the efficiency. Efficiency has to be same. So conclusion is that like this, reversible engines or the Carnot engines working over same temperature, okay, in parallel combination, and this is the meaning of parallel combination कि temperature same होगा दोनों का, over same temperature will have same efficiency as the individual one। और पहला स्टेटमेंट ये लिख सकता है, और ऐसे लिख सकता है,
parallelly coupled Carnot engine efficiency of this is the correct word, efficiency of parallelly coupled Carnot engine is equal to the single Carnot engine, ऐसे बोल सकता है। एंड इफ़ यू सी तुम्हारे मास्टर ने ये वाला प्रूफ जो है ये इसको ऐसे लिख रखा है, रिवर्सिबल इंजन वर्किंग ऑन सेम टेम्परेचर हैव सेम एफिशिएंसी। ही हैज़ प्रूव्ड इन द डिफरेंट वे ऑल्सो, वी विल प्रूव ऑल्सो इन द दैट वे, बट ये भी एक प्रूफ हो सकता है कि तो पहले से इसको ऐसे निकाल करके एन ईटा कंबाइंड और ईटा इंडिविजुअल निकाल करके कंपेयर कर सकता है कि वैल्यूज आर सेम। फाइन, सो प्रूफ वी विल सी इन द